आज हम बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में, है ना. What is token? You already learn about tokens in C language. Token is just a small entity of a programming language. Any word that included in a program that will be known as tokens. Uh, if we take an example, we can see a simple program. There will be two variables num1 and num2 and initializes with the value 10 and 20 and here displayed sum of both numbers by cout object. तो जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 लाइन का प्रोग्राम है. अगर हम टोकन्स की बात करें तो देयर विल बी ए लॉट ऑफ टोकन्स इन दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ some words like int, main, like curly brace, all these are known as tokens. Tokens we can simplify just as it is a smallest entity of the program. ठीक है, प्रोग्राम की सबसे छोटी जो एंटिटी है that will be a token. There is some categories available of tokens like here we categorize tokens in 5 different categories, and all these 5 categories are as well as first one is the identifier. What is identifier? Identifier is just a name or just a identity for any class, object, variable, etc. You have to use in your program. जो कुछ भी आप यूज करते हो, everything जिसको भी हम आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जैसे वेरिएबल नेम है num1 एंड num2 बोथ आर आइडेंटिफायर्स. हियर num1 एंड num2 आर आइडेंटिफायर्स क्योंकि ये हमने डिफाइन किए, ये वेरिएबल्स नेम हमने दी. अगर कोई फंक्शन हम बनाते हैं दैट विल बी फंक्शन नेम विल बी आइडेंटिफायर. क्लास हम बनाते हैं क्लास नेम विल बी आइडेंटिफायर. ऑब्जेक्ट नेम विल बी आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम विल बी आइडेंटिफायर, है ना. तो ये सब के सब किस में आएंगे? आइडेंटिफायर है ना. In the above code there will be some examples of identifier like main, num1, num2, cout, all these are known as identifiers. Second category will be keywords. You already I think have discussion about keywords in C language because of there are 32 keywords in C language, and keywords are these reserved words that cannot be used by us according to our use, है ना. हम अपने यूज के लिए अपने हिसाब से उनको यूज नहीं कर सकते. These are reserved words and you have to use according to compiler's definition. जिस प्रकार से कंपाइलर ने उनको डिफाइन किया, उनका यूज जिस टाइप से बताया गया, हम उसी टाइप से उनको यूज कर सकते हैं. Next one is the constant. So there will be the constant value in this given program are 10 and 20. Two values given to variable num1 and num2. These both values are known as constants. You have already get knowledge about constants in previous year in C language. Okay, next one, separators or punctuators. Then these are also in category of tokens, and examples are like parentheses, curly braces, brackets, semicolon, that is known as statement terminator, and colon, hash, that will be known as preprocessor directory, and all these are known as separators or punctuations in category of
keywords. In this way, the next one is the operators. There will be certain type of operators like arithmetic operators, logical operators, relational operators. है ना? All these kind of operators are also included in tokens. So we can see that the all things that included in a program are known as tokens. Okay. Please answer the question. Okay, B and C is the right answer. Both B and C are right here. The token int is called a keyword. ठीक है, int keyword है, ये आप C लैंग्वेज के अंदर पढ़ के आए हो. जो कीवर्ड C लैंग्वेज में थे वो सारे के सारे C++ में भी कीवर्ड्स रहेंगे, है ना. और नेक्स्ट था हमारा C, जो कि क्या है, द टोकन num1 which is a variable name is called an identifier. ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. num1 num2 both are tokens because of both are in category of identifier. Okay, good. Next, character set in C++. What is the character set? If we talk about character set, then we can't ignore the tokens. Token is also a part of character set because of in whole program the complete program is combined or combination of different kind of character sets. Okay, so we have to see that what is the character set. Then characters that use to develop a program or in programming language, that will be called as character set. जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर कैरेक्टर सेट क्या होगा, इंग्लिश का जो जितना अल्फाबेट है A to Z, that will be character set. And some kind of symbols like full stop, question mark, these are punctuation marks, these are also included in character sets. यानी जिससे लैंग्वेज मेनली बनती है, जो हम लैंग्वेज बनाने के लिए, वर्ड बनाने के लिए जो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं, दीज आर कैरेक्टर सेट्स. An important statement that will be C++ is cache sensitive. C language is also a cache sensitive. So आप cache sensitive से पहले से familiar हो. cache sensitive क्या होता है? C language भी cache sensitive है और C++ भी cache sensitive है. Cache sensitive means simply we can define that capital A and small a both are not same in C++. Both are different. ठीक है, capitals A or small a both are not same in C++. That is cache sensitive. ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. ऐसे नहीं कि डिक्लेयर किया वहां पे हमने वेरिएबल नेम कैपिटल में ले लिया और जहां पे हम यूज कर रहे हैं वहां पे हमने उसको स्मॉल में लिख दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैश सेंसिटिविटी, it will not work properly if you get that type of mistakes. So थोड़ा सा इस चीज के बारे में केयरफुल रहें. So the character sets of C++ we can see in this slide. Uppercase alphabets are included in character set. Lowercase alphabets are also included in this, and decimal digits and special symbols. If you hear about ASCII code in first year, I think we have to, you had already used these ASCII codes.
सी प्लस प्लस के अंदर हम कैरेक्टर सेट के अंदर अल्फाबेट इंक्लूड कर रहे हैं, स्मॉल एंड कैपिटल। तो इनकी एक्चुअली आस्की कोड्स क्या होते हैं? आई थिंक कैपिटल ए का 65। यस, राइट, 65 to 90. That will be for A to Z, and small के लिए रहेगा आपका 97. 97 to 122. Yeah, am I right? Okay, जीरो का, जीरो का 48 40। yes sir। है ना, 48 to 56 आई थिंक सो, 56 या 57 जो भी है, काउंटिंग जिस हिसाब से आएगी, है ना, या 47 से होता है। आई नोट कंफर्म अबाउट दिस, आई थिंक 47 से होगा, 47 से 56 होगा। 46। yes। यस, 0 to 9, okay, that will be the criteria. And for special symbols, remaining all 0 से 256 to 55, इनको छोड़कर जो भी रिमेनिंग बचते हैं, दीज आर यूज फॉर सम काइंड ऑफ सिंबल्स एंड एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस भी तो दी गई है ना, आप /b/t ये सब आप यूज करने वाले हो फॉर ब्लैंक स्पेसेस, फॉर टैब, फॉर वर्टिकल टैब, फॉर हॉरिजेंटल टैब, फॉर बेल्स, different kind of things we have to use in form of escape sequences. So all these remaining ASCII codes occupied or reserved for specific symbols, special symbols. So that is the character set used by C++. Question? Yes. B and C is the right answer. Good. Okay, now understanding identifiers. Understanding of identifiers, I think you have already learned about this, but we have to discuss once again because of identifiers are also an important part of our programming. So the rule and regulations of identifiers we have to learn first. So the identifiers are just names of variables, functions, class, and etc. Okay. Some kind of rules like in C language we already learn about rule and regulations, like we don't use blank space between identifier name, and we can't start with digit. We can use alphabet and digits and underscore for identifier name. All these kind of rule and regulations are also mentioned here. These are, I think all are same. You can read one by one. First one is for alphabet and underscore आप use कर सकते हो, digits भी use कर सकते हो, there is no problem with digits, तो digits को भी आप use कर सकते हो, and the remaining नेक्स्ट वाला है अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। अच्छा, ओके, कंबाइंड आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट ये कि आप स्टार्ट केवल अल्फाबेट और अंडरस्कोर से कर सकते हो, आप डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर नेम को। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आप डिजिट भी यूज कर सकते हो, बट एज ए फर्स्ट कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ओके, थर्ड वन इज स्पेशल सिंबल आपका अंडरस्कोर है, जिसको आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड
लेंथ की यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और सम काइंड ऑफ रूल्स नॉट इंक्लूडेड हियर बिकॉज आप लोग पहले से सी लैंग्वेज में उनको पढ़ के हो. जस्ट लाइक ब्लैंक स्पेस हम नहीं ले सकते, कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, है ना. दीज सम रूल्स आर आल्सो make sure. Okay, live demonstration we have to see. Okay, let us learn about identifier. First, I think he mentioned some rule that we have already discussed, and there are an example. So int x equal to 3, char ch equal to a, and int यहाँ पे एरे दिया गया है जिसमें कुछ वैल्यूज डाली गई. तो यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरीज हम कह सकते हैं. फर्स्ट वन ऑफ द डेटा टाइप, सेकंड वन इज ऑफ द आइडेंटिफायर, एंड थर्ड वन ऑफ द वैल्यूज. सो यहाँ पे रेड से जो है वो क्या है, मेनली यहाँ पे देखो लिखा है डेटा टाइप्स, कॉल्ड टाइप्स और डेटा टाइप्स. इंट कैरेक्टर, और इस इंट को हम क्या बोलेंगे, डेटा टाइप्स बोलेंगे या सिंपली टाइप्स बोलेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट कैटेगरी एक्स, सी एच और ए आर आर, दीज आर known as identifiers. Okay. And next, these are constants. Okay. 3a, 1, 2, 3, these are constants. These are some rules that we have already discussed. Okay, some examples like valid or invalid. Okay, these are some examples like buffer xa, that is valid because of यहाँ पे अंडरस्कोर पहले यूज किया गया, तो अंडरस्कोर बफर वैलिड है, x अकेला वैलिड है, a भी वैलिड है, सम भी वैलिड है, और नेट अंडरस्कोर पे ये भी वैलिड है. बट इधर हम देखेंगे, देखो 3a दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग विल बी ऑफ फ्रॉम 3 डिजिट्स, दैट विल बी डिजिट. डिजिट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका इनवैलिड होगा. ठीक है. एंड सिंगल कोट्स आप यूज नहीं कर सकते, सो दैट इज इनवैलिड. ओनली डिजिट्स इनवैलिड. हेलो वर्ड बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया, इनवैलिड. एंड 45 पहली बात तो डिजिट की वजह से इनवैलिड हो गया, स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आ सकती. इसके अलावा ये जो हमने हाइफन लगा रखा है डैश, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, है ना, दैट विल नॉट अलाउड. अब यहाँ पे आप कुछ आइडेंटिफायर अपनी तरफ से इनपुट कर सकते हैं. जैसे मैं मान लो यहाँ पे इनपुट करता हूँ रिजल्ट, इट विल बी रिजल्ट इज ए वैलिड आइडेंटिफायर. अब मैं अगर लिखूं रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, दैट विल बी आई थिंक नॉट वैलिड. अच्छा इतना ही लेगा ये. ठीक है, इनवैलिड. बीच में स्पेस आ गया तो वो इनवैलिड है. ठीक है. टू ए बी सी, दैट विल बी इनवैलिड. ठीक है. तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो भी रूल्स हमने देखे थे, और अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं इंट जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा. इंट इज वैलिड आइडेंटिफायर इन C++ ड्यू टू नेम स्पेस डायरेक्टरीज. ये ध्यान रखना, इसलिए नेम स्पेस जो है वो यहाँ पे C++ के अंदर कंपल्सरी दिए गए. क्या सी के अंदर हम इंट यूज कर सकते थे एज आइडेंटिफायर? नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ वहां पे सारे के सारे कीवर्ड जो थे वो प्रोहिबिटेड थे, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते थे. ठीक है. सम मोर कीवर्ड्स वी हैव टू ट्राई लाइक for is also a keyword, na, for loop. Yes, sir. Yes, sir. Valid. ठीक है. और we can say while
these are all valid. अगर आप नेम स्पेस यूज करते हो तो, अगर नेम स्पेस आपने यूज नहीं किया देन इसको ये फिर कैटेगराइज करेगा और इसको एरर शो करेगा फिर, है ना. सो यू हैव टू यूज नेम स्पेस. सो सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट only is the right answer because of in last one identifier is valid but statement is Not. not correct, है ना. Yes, sir. Because of here mention not a valid identifier but it is Yes, sir. valid, है ना. Okay. Now the understanding about variables. So variables are just also known as identifiers, and these are used for allocation memory space for storing some kind of data. That will be integer, float, character, any kind of data we want to store for program logic or for calculations. ठीक है. तो variables are also we can say I think मैं देखता हूँ अगर इसका demonstration available है तब तो इसको हम अगर डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी. नो देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, नो इश्यू. मैं आपको ऐसे ही इसको बता देता हूँ. वैसे आप लोगों की प्री अंडरस्टैंडिंग इस पे है वेरिएबल्स पे. देखो वेरिएबल्स मेनली आई टेक ए राइटिंग पेंसिल. इट इज जस्ट suppose it is memory and I declare one variable like int, ठीक है, and name is e. Okay, so whenever we declare that variable int a, then यहाँ पे क्या होगा, मेनली जब वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे होंगे तब कोई एक्चुअली वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट हम जब इसको कंपाइल करेंगे, आपने कोड कंप्लीट लिख लिया और जब आप कंपाइल करोगे तब मेनली क्या होगा, तब मेमोरी के अंदर एक मेमोरी स्लॉट क्रिएट होगा. ठीक है, और उसके अंदर फिर जो भी आपकी ए की वैल्यू रहेगी वो रहेगी. इसका एड्रेस कुछ और होगा, ए इसका एड्रेस नहीं रहेगा. मान लो 101 इसका एड्रेस है. ठीक है, और ए एक्चुअली इस मेमोरी लोकेशन का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर रहेगा जो कि इस नाम से जाना जाएगा. एक्चुअली वी कांट एक्सेस directly using the identifier a. There also role of address, but a just like work on आइडेंटिफायर. जैसे मान लो आप लोगों के नेम जो है वो आपका आइडेंटिफायर है, बट आपके नेम से कोई भी आपके घर तक नहीं पहुंच सकता, जस्ट आपके नेम से, है ना. घर तक पहुंचने के लिए आपके नेम के साथ साथ आपका एड्रेस भी चाहिए, है ना. सो दीज बोथ थिंग्स आर नेसेसरी. एंड जो भी वैल्यू आप चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे चाहे वो यूजर डिफाइंड वैल्यू होगी, जैसे आप स्कैनअप से इनपुट करते थे सी के अंदर और यहाँ सीन से इनपुट करोगे, तो वेन एवर यू इनपुट योर वैल्यू फ्रॉम द यूजर देन द वैल्यू टेक प्लेस हेयर. मान लो 5 मैंने इनपुट किया. दैट्स वाई in scanf we have to use address of a, not writing well by mouse, है ना. scanf के अंदर हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ए, है ना. सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है. और सेम सिंटेक्स प्रिंटफ का होता है, बट वहां पे हम वेरिएबल नेम के साथ एड्रेस साइन यूज नहीं करते हैं. आपने ये चीज देखी ना सी लैंग्वेज के अंदर. तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हम केवल स्कैनएफ में ही वेरिएबल के साथ एड्रेस साइन क्यों यूज करते हैं, प्रिंटएफ में क्यों नहीं करते? देखो सिंपल सा रीजन है. वी हैव टू यूज एड्रेस साइन इन स्कैनएफ बिकॉज ऑफ वी विल
take input from keyboard that will be stored in memory, and every unit of memory identified by a particular address. कोई भी मेमोरी यूनिट बिना एड्रेस के कभी भी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, है ना. एवरी मेमोरी लोकेशन हैज ए मेमोरी एड्रेस. दैट्स वाई यहां पे हम ए का एड्रेस यूज करते हैं. ठीक है, ए आइडेंटिफायर उसका एड्रेस क्या है, 101 है. तो जैसे आप वैल्यू इनपुट करोगे वो यहाँ पे इस एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाएगी. दैट विल बी द रीजन बिहाइंड एड्रेस सिंबल. प्रिंटएफ में हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे जो आपकी वैल्यू है वो रीड करते हैं हम, है ना. और वैल्यू आपकी जाती कहाँ पे, दैट विल बी ऑन कंसोल स्क्रीन एज ए आउटपुट, है ना. तो यहाँ पे केवल आप आइडेंटिफायर से वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो. देयर नो नीड ऑफ एड्रेस सिंबल. पॉइंटर भी यही करता है, एड्रेस एक्सेस करता है ना. तो पॉइंटर होता है, तो हमें अगर कोई अपने वेरिएबल एज ए पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है तो स्कैनएफ के अंदर भी एड्रेस सिंबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना. तो ये मेनली वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट रहता है. सिंटैक्स आपको पता ही है, डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद सिंगल स्पेस के साथ हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, है ना. और that is also the same with constant value, no difference in both of them. First one is the only variable and second is the variable with initialization. Okay, solve the question. So देखो, in this particular question there will be the first option, variable is an identifier and used to store data. It is the correct statement. ठीक है, ये आइडेंटिफायर होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है. ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इज फिक्स्ड. दैट इज द रॉन्ग आंसर. नॉट फिक्स्ड, यू कैन चेंज whenever you want to change, you can change. जब भी आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो. Yes, sir. That is not fixed. You can reinitialize. You can assign with some kind of function calling, some kind of Just calculation in case statements. of swapping two Yes. You can change. So the second statement will be wrong, and third, variable is a name given to a memory location is right, and last one is also correct. So the answer is A, C, and D. Most of the students give given right answer. Okay, understanding about keywords. That will be also interesting. There are a lot of keywords. All things you know already. Mainly keywords क्या होते हैं? These are reserved words and we have to use in lowercase letters always because of the property of case sensitive, है ना. तो C हो चाहे C++ हो, there in both there are rules are same, है ना. लोअर केस में ही हमें यूज करना है कीवर्ड्स को. These are 63 keywords in C++ programming. In C there was 32 keyword, but in C++ there are 63 keywords. आपके 32 वो तो एज इट इज रहे, इसके अलावा कुछ नए कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ASM. ये ASM है, कैरेक्टर पहले से था, डिलीट भी आई थिंक था, एक्सप्लिसिट इज न्यू, फ्रेंड इज न्यू, मेटाबल,
म्यूटेबल हो गया, पब्लिक हो गया, और साइज ऑफ पहले से था, दिस नहीं था पहले से, दिस हाँ। पॉइंटर इज इंक्लूडेड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एंड टाइप नेम Volatile also. वोलेटाइल न्यू है, ऑटो पहले से था, क्लास न्यू है, एक्सपोर्ट था पहले से, गो टू था, नेम स्पेस दोनों में काम आता है, सी में भी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, रजिस्टर भी था, क्योंकि हम जो क्लासेस पढ़ते हैं ना स्कोप्स वगैरह वेरिएबल्स का, तो वहाँ पे ये रजिस्टर और ये सब आते हैं। स्टैटिक भी था, थ्रो न्यू है, ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा, एंड यूनियन पहले से था, डब्ल्यू ये के भी न्यू है सर। ये भी न्यू है, एंड बूलियन पहले से था, कांस्टेंट कॉन्स्ट पहले भी से था, था, डबल डबल भी था, है, एक्सटर्न एक्सटर्न नहीं था। भी है, ये स्टोरेज क्लास है ना, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्टैटिक और ऑटो, ये चारों आपकी स्टोरेज क्लासेस होती। यस। इफ न्यू न्यू आई थिंक उसमें यूज नहीं होता है सी के अंदर, क्योंकि ये नहीं डायनेमिक सर। मेमोरी एलोकेशन है ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, जो भी 32 कीवर्ड आपके सी के थे उसके अलावा सब न्यू है, तो ये आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना, अपने कंपेयर कर लेना अपने पुरानी सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स के साथ, यस so सर। you can easily identify new keywords. Then I think there also one question. Yes. So answer the first. Okay. I think some students have some confusion because of previous demonstration. I will explain that again because of the confusion created due to some word identifier and variable, है ना? All variables are identifier, but not all identifiers are variables. That's why some students give some wrong answer. I know there will be some confusion. देखो यहाँ पे हमने ट्राई किया था, है ना, फॉर आइडेंटिफायर, फॉर नॉट वेरिएबल, नॉट फॉर वेरिएबल। तो इंट हमने जब यहाँ पे किया था, तो दैट इज ए वैलिड आइडेंटिफायर, नॉट ए वैलिड वेरिएबल। कीप इन माइंड, आइडेंटिफायर तो कीवर्ड्स मेनली यहाँ पे इंक्लूड हो गए, ठीक है, और आपके फंक्शन नेम यहाँ पे इंक्लूड हो गए, वेरिएबल नेम यहाँ पे इंक्लूड हो गए, है ना, तो दैट विल बी ए ब्रॉड कैटेगरी। बट यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। वी हैव टू ट्राई, दैट विल बी द GDB compiler. Okay, I take a new, okay, that will be the new, and यहाँ पे मैं आयो स्ट्रीम ले लेता हूँ, ओके, नेम स्पेस ले लेता हूँ बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए, जिंग स्पेस std, ओके, है ना। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जस्ट int, or any one keyword I will take like do int also. or int also, okay, these two are variables, है ना। ये white में दिख रहा है, ये कीवर्ड है, ऑब्वियसली हमें ये नजर आ रहा है। do कीवर्ड लिस्ट में नहीं था क्या? I will check once, do is the in keyword list or not, not ना हाँ सर, है, तो फिर वो कलर उसका कीवर्ड है। I will check, हाँ, do is the keyword,
ओके, दोनों ही कीवर्ड है, ठीक है। सो हियर विल बी आउट, एंड मैं कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, जस्ट लाइक डू एंड just int, and we have to give some values like 10 and 20. Now there will be error with do and okay, है ना। फर्स्ट वाले को ये कर रहा है तो मैं फर्स्ट वाले को पहले हटा देता हूँ, इसको ओनली डी कर देता हूँ। ओके, ठीक है। डू हमारा Okay, कीवर्ड sir. था इसलिए इसने एरर दिया। देन नेक्स्ट वन इज एरर विद इंट, है ना। इंट में ये एरर दिखा था, देखो, एक्सपेक्टेड अनइक्वलिफाइड आईडी बिफोर इंट। सो इसको इंट को भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको केवल इन कर देता हूं। बिफोर रिटर्न, ओके, देयर इज नो 14th प्रॉब्लम। लाइन में सर। इसमें है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, ओके, नो इश्यू। आर ई टी यू आर एन, सेमीकोलन नहीं है सर, ओके, 14th लाइन। यस 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 यस। ओके, 10 एंड 20 है ना। और एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आपको न्यू लाइन में ले जाना होता है ना, जैसे सी के अंदर हम स्लैश, हाँ बिल्कुल, स्लैश एन यूज करते थे, तो यहाँ पे एंडल यूज करेंगे ना, एंड एल, एंड ऑफ लाइन इसको हम बोलते हैं। स्लैश एन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, स्लैश एन इज ऑल्सो एलिजिबल, है ना, बट वी हैव टू यूज एंड एल, ठीक है। क्योंकि सी के जितने भी फंक्शंस थे वो सारे सी प्लस प्लस के अंदर एलिजिबल है, तो आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हो, देर इज नो इश्यू। सो मूव बैक ऑन स्लाइड। So the answer is A and B. Okay, right answer.